Hey guys, so welcome to the second part of the video. I'll just see if the audio is there. Yeah. Basically, I'll be giving you an overview about Photoshop, and it is as similar as using Photoshop on Photopea as well. So the first video is currently uploading. Okay, we'll be trying to make something on Photoshop and get well versed with the tools that are there in Photoshop. Okay, so I'll be giving you a basic overview about how the tools are used, and if you have must have used Paint in your childhood, then I don't think that this will be any kind of an issue for you. ठीक है कुछ tools नए होंगे and I'll try कि बिल्कुल आसानी से explain कर दूं. So I am being very honest with you and I am giving you a kind of a insight that what should you be learning about. You must know about the basic tools as such कि मुझे पता है कि हाँ भाई ये tool exist करता है, but to know about the kind of a I mean the usage of a tool, then it should be done in depth, and there are courses on Udemy and Coursera, but honestly what I feel is sorry, so GFX Mentor was there. I mentioned about him in the last video as well, but as you can see कि इसमें पूरा का पूरा इतने सारे videos है. ठीक है, and he has just defined a course and उसमें एक एक tool के लिए he has considered a half an hour class for each. ठीक है, तो पहले इन्होंने beginner से किया है, then there is intermediate. I'll just see if it is there or not. Since advanced is there, so I'll just sort it once. ठीक है, so I guess yes, so there is Photoshop intermediate tutorials as well. ठीक है, once you get well versed with the basic one, then you may shift on to the intermediate and then on to the advanced one. So I'll just open the first Hi. advanced one. ठीक है, just a second. So as you can see कि काफी ज़्यादा he has covered things. ठीक है, but इसमें he has not mentioned about the making things. ठीक है, we'll see the intermediate one. Convert day and night वाला is actually very nice. ठीक है, Assalamu alaikum. Welcome to completed GFX. this. I have not completed the advanced one. I have been looking onto these courses. So as you can see, adjustment, hue and saturation. He has covered everything that he could, and you would be getting a better insight after you watch a video and practice everything that he's telling you to do. ठीक है, other than that there is the future is there. I think there must be some tutorials. So he's as actually a great designer, and the future would be giving you a great kind of an insight about graphic designing and how he has been working upon graphic designing. So it's not only of about the graphic designing only, there are other things as well. ठीक है, and business of design is there, and I mean this is a kind of a great reference that I would consider. And if you want ki I should be giving you more and more people whom you should follow, so in the list of that presentation about I mean the presentation about this thing, the overview of graphic designing, I have mentioned over here a lot of people to whom you can refer. ठीक है, and these are from Instagram, so you may even find once you follow them, you may find them on YouTube as well. ठीक है, and as such if an issue is there, you may just write best course on Photoshop. ठीक है, Envato Toots is there, and मतलब many people are there who could teach you Photoshop. I'll just suggest कि English वाले पे ज़्यादा जाना, because you will get to know about the name of the tools and what all is happening. It's completely upon your discretion if you want to go for Hindi ones, but I I myself just advise you just go for the English ones, because they would be teaching you about better things. And not only that, the foreigners have flourished a lot in this industry. And if you notice on the freelancing websites, you may notice that a lot of American and kind of a Western people are actually earning a lot of money by making by graphic designing. So it is best that you
refer to these people. And in case if it is an uh, a kind of a difficulty in finding the best ones, what you can do is just switch on a VPN and just I mean try to open YouTube and change its location. You will definitely find a lot of foreign what is trending in USA and what all designers are there in USA and whom of them are actually famous. ठीक है, because YouTube has an algorithm of showing you the content from your country only. It is great to watch the ones who are from our country, but I would suggest ki go for these the ones, because you will be getting a variety and what all is going on into the in the market, that would be uh, coming, and that would be something which you can obviously look for. Okay, so you may refer to these kind of people, and I have given the in my presentation I've also included a lot of people. Just a second. So there are, yes, I am a designer, GFX mentor, Dope Motions, Rajiv Mehta. There are a lot of people which you can refer. Okay, and I mean, if you just give this thing a read, you will definitely find what all is there in graphic designing. And Canva is the foremost thing which you should master first. ठीक है, फोटोशॉप का एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए इन केस यू आर or you want to just grow yourself and you want to move from Canva. ठीक है, एंड कैनवा में क्या होता है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, तो एवरीवन इज यूजिंग दैट. सो यू वांट दैट, आई वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. सो ट्राई कि आप कैनवा को मास्टर कर लो एंड आफ्टर दैट कीप मूविंग विद फोटोशॉप एज वेल. ठीक है, so we'll be taking this picture for our reference, and I'll be teaching you from tools from here, and I'll be telling you about what all is these things are. ठीक है, सो आई ट्राई कि मैं यहाँ वाले टूल्स एंड ज़्यादा कुछ आज कंप्लीट कर लूँ, एंड ऊपर वाले जो है इसको मैं ज़्यादा इतना नहीं करूँगा. आई जस्ट बी गिविंग यू अ बेसिक ओवरव्यू फॉर द सेम. ठीक है, सो नाउ वी शैल बी वर्किंग ऑन टू हाउ टू ओपन अ फोटोशॉप फाइल. ठीक है, सो व्हाट आई जस्ट डू, I'll open go to new, and I this kind of an box would appear. ठीक है, so इसमें ना sizes का scene is there. ठीक है, तो before creating a file I'll just tell you the difference that Photoshop जो है pixels में operate करता है rasterized pictures में. So as you can notice कि यहाँ पे ये boxes आ रहे हैं छोटे छोटे, so these are considered to be the pixels in which the image has been made from. छोटे छोटे बॉक्सेस में देर आर कलर्स दैट हैव बीन फिल्ड, एंड उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी इमेज क्वालिटी कैसी होती है. ठीक है, तो द मोर द कलर्स आर देयर द बेटर द, एंड द मोर द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर देयर द बेटर इज द क्वालिटी ऑफ योर इमेज, एज यू कैन सी इन दिस. ठीक है, तो यू मे नोटिस कि काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग इसी की वजह से हुई है, क्योंकि एक वैरायटी ऑफ कलर्स आर देयर. अगर मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो एक वैरायटी ऑफ टेक्सचर आता है इस पे. Okay, so I have told you that what is the main purpose. I mean the purpose. I mean किस पे ये जो पूरा canvas है वो depend करता है. क्या, तो ये छोटे छोटे boxes पे as you can see कि just a second, as you can see कि इस पे पूरा का पूरा it is considered to be in a box. यहाँ पे अलग colors है, boxes पे अलग colors है. So these are known as pixels. एंड अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, यू मे नोटिस कि द करेंटली सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव द बैकग्राउंड, तो इसको नॉर्मल बना देते हैं. ठीक है, सो एज यू कैन सी इसको नॉर्मल बना दिया. एंड बैकग्राउंड का तो यू मस्ट बी नोइंग कि जो सबसे पीछे आ रहा है लेयरिंग में वो बैकग्राउंड कंसिडर होता है. ठीक है, फर्स्ट व्हाट वी विल बी डूइंग, पहले तो हम इसको ओपन करेंगे. ठीक है, तो इसमें ना इफ यू आर यूजिंग अ 2014 या फिर 2020 वर्जन, तो ये सारे यू गेट मोड्स. ठीक है, लैंडस्केप इज देयर, प्रिंट का इज देयर, कि आपको किस तरह का प्रिंट चाहिए, A4 साइज चाहिए. तो इसमें क्या होता है, यू मे इवन वर्क ऑन अ स्मॉल इमेज as small as a passport size photograph, and a large image as big as a banner on a stadium. So इसी पे पूरा काम कर सकते हैं. एंड यू मे नोटिस कि यहाँ पे 4.88 m आ रहा है. सो दैट इज शोइंग कि मैं कितना ज़्यादा काम कर रहा हूँ एंड कितनी ज़्यादा उसकी फाइल की स्टोरेज बढ़ेगी डिपेंडिंग अपॉन उस कैनवस का साइज कितना बड़ा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो एक्चुअली. सो एज यू कैन सी पिक्सल्स का कंसेप्ट मैंने अभी बता दिया कि क्या होता है, एंड ये सारे मेजरमेंट्स हैं.
ठीक है। सो अगर मैं इंचेस कर देता हूँ एंड इट इज शोइंग मी 15/33, तो एक मतलब ठीक ठीक है, एक रीजनेबल इंच है। ठीक है, तो 15/33 मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी नहीं है, बट स्टिल दिस दिस वी आर एबल टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ एन इमेज। ठीक है, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एंड इसको भी अगर मैं जीरो आगे प्लेस कर दूं तो ये काफी ज्यादा बड़ी इमेज बन जाएगी। ठीक है, एंड एज यू कैन नोटिस यहाँ पे 784 MB की फाइल बन गई है। तो अगर मैं इसे सेव करूंगा तो ये एटलीस्ट 150 MB की सेव होगी, तो काफी ज्यादा साइज बड़ा हो जाता है। एंड यू मे नोटिस कि अगर मैं इसे देखूं तो ये इतना का इतना ही है। मतलब अगर मैं इन्हें कंपेयर करूं तो दिस वन इज बिगर एंड दिस वन इज शॉर्ट स्मॉलर, बट साइज में अगर जैसे इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये वाली जो चीज है ये छोटी प्रिंट होगी, एंड ये वाली जो चीज है वो काफी ज्यादा बड़ी प्रिंट होगी। तो इसमें क्या होता है, फोटो क्वालिटी काफी ज्यादा इम्प्रूव रहती है। ठीक है, सो अदर देन दैट व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से रीजनेबल होते हैं पिक्सल्स। ठीक है, व्हाट आई कंसिडर इज 1080 एंड 720 का इज एडवाइजेबल पिक्सल्स का। तो यू मस्ट हैव नोटिस कि मेरी यूट्यूब का भी जैसे क्वालिटी होती है तो इसी पे डिपेंड करते हैं। तो 720p, 1080, 1320, 1440 एंड और भी मतलब इसी के पैटर्न में चलना चाहिए। ठीक है, एंड यू मस्ट हैव नोटिस कि 12 के मल्टीपल्स में चल रहा है। ठीक है, मैं 640 लगा लूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं अगर चाहूँ तो कुछ भी रख सकता हूँ, 960 रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप 12 के मल्टीपल्स में ही रखो अपने साइज को। ठीक है, एंड डोंट जस्ट इसको छोटा मत कर देना, बिकॉज अगर आप कहीं बाहर से जैसे इमेज डालते हो, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मुझे ये इमेज इसमें डालनी है, क्या आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। यू मस्ट हैव नोटिस कि इसने ये पूरा फिल कर लिया क्योंकि आइडियल साइज था। ठीक है, अगर मैं इसको ही जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसको ही मूव करके इसमें प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो आइडियल साइज इसमें आ जाता है। बट क्योंकि मेरा ये लेटेस्ट वर्जन है, बट इफ यू आर यूजिंग नॉट द लेटेस्ट वन, आई गेस इट इज CC1। ठीक है, बट इफ यू नोटिस कि अगर आप वैसे अपने फोटोशॉप में डालोगे, जैसे ही ऐड करोगे वो पूरा का पूरा ही फिल हो जाएगा। मतलब जैसे ये येलो कलर है तो ये इसके ऊपर चला जाएगा एंड इसका साइज ही बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार शो करके दिखा देता हूँ। तो एज यू हैव नोटिस कि ऐसा सा कुछ वो बनने लग जाएगा विच यू डोंट वांट। ओके, सो जस्ट ट्राई कि आप एक रीजनेबल काइंड ऑफ वो लो। ठीक है, रीजनेबल काइंड ऑफ साइज लो। ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग ऑन टू मेकिंग अ सिंपल पोस्टर फॉर आवर सेल्व्स। ठीक है, मैं मतलब इसी पे सारा कुछ ट्राई करूंगा कि सारे टूल्स एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, व्हाट ऑल इज इन्वॉल्वड एंड व्हाट कैन बी डन विद दिस थिंग। ठीक है, इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए बंद करते हैं। तो न्यू फाइल खोलने का यही है कि आप यूजुअली कस्टम ही लिया करो। ठीक है, आई गो टू फोटो, आई चेंज दिस टू पिक्सल्स, सॉरी, एंड आई वांट कि मेरे को 1080 का ही चाहिए, दैट इज अ बेसिक इंस्टाग्राम साइज। एंड ओरिएंटेशन तो स्क्वायर ठीक रहती है। आई डोंट वांट टू ऐड एन आर्ट बोर्ड एंड आई विल जस्ट क्रिएट अ सिंपल इमेज काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। ठीक है, सो इसके थ्रू आई बी अब आई नो कि मेरे को एक नई फाइल ओपन कैसे करनी होती है एंड कैसे, एंड जस्ट यू नीड टू नो अबाउट द सेव थिंग। ठीक है, सेव एज में एक बार मैं दिखा देता हूँ कि व्हाट ऑल इज देयर। तो काफी सारे एक्सटेंशंस आ जाते हैं। द आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द इम्पोर्टेंट वंस। वन इज फोटोशॉप पीएचडी यही फाइल होती है। तो अगर मैं जैसे मैं अगर आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, सो यू विल बी एबल टू एडिट ऑन टू दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट कम्स PNG। ठीक है, तो जैसे इन द प्रीवियस वीडियो दैट वी डिड यस्टरडे, ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस कि मैंने बैकग्राउंड हटा दिया था। सो PNG फाइल में अगर मैं जैसे, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं जैसे इसका ये लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+X करता हूँ एंड इसको मैं अगर, अच्छा ये तो पहले से बैकग्राउंड है। ठीक है, विल ऐड अ न्यू लेयर और आई विल जस्ट डू द इरेज दिस टूल, इरेज दिस थिंग। एज यू कैन नोटिस यहाँ पे चेकर्स टाइप कुछ आ जाता है।
अगर मैं सेव करता हूँ अपनी फाइल को एज अ पीएनजी फॉर्मेट, ये जो बॉक्स होगा ये हट जाएगा एंड पूरा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार शो करता हूँ आपको। I will save this in the desktop and I'll be taking it as a PNG file। दोनों फाइल से सेव करके देखता है, I'll show you the difference। ठीक है, एंड इसको मैंने एक बार सेव एज किया। अच्छा, इट इज टेकिंग सम टाइम टू सेव। ओके, सो मैंने इसको वापस से सेव किया एंड आई सेव्ड इट एज अ जेपीईजी फाइल। आई हैव टू ऐड दिस इन डेस्कटॉप। हाँ, तो ज़्यादातर वो होता है कि क्वालिटी आप मैक्सिमम ही रखो, मैट वैट लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वही होता है कि आपको फोरग्राउंड कलर कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए। दिस इज द फोरग्राउंड कलर, दिस इज द बैकग्राउंड कलर एंड वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, अब एज यू कैन नोटिस यहाँ पे पीछे बॉक्स हट गया, यही सेम कलर है और यही यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसे कैनवा में ऐड करता हूँ तो पीछे ये बॉक्स आएगा ही नहीं। ठीक है, एंड इसमें इफ यू नोटिस यहाँ पे वाइट कलर आ गया। सो यही डिफरेंस होता है पीएनजी एंड जेपीजी में, कि आपका जो ये जो चेकर्स क्या होता है, दिस मीन्स दैट देयर इज नथिंग, ये पूरा ब्लैंक है। ठीक है, बिकॉज इवन वाइट कलर भी एक एलिमेंट माना जाता है, बट इफ यू वांट कि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं पीछे, मेरे को ये अननेसेसरी का बैकग्राउंड ही नहीं चाहिए। जैसे अगर इस बंदे के पीछे ऑब्वियसली कोई ग्रीन स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन होगी, मुझे वो चाहिए ही नहीं थी। सो व्हाट आई हैव डन इज कि उसका पूरा बैकग्राउंड ही हटाने के लिए आई सेव्ड इट एज पीएनजी। ठीक है, सो ये दो चीजें यू मस्ट कीप इन माइंड। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं आपको सारे के सारे टूल्स का यूज बताना शुरू करूंगा एंड ये बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू होगा कि व्हाट ऑल इज देयर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्मेशन वाला आ गया, यहाँ पे फेदर का आ गया, आई वोंट बी गेटिंग इनटू डिटेल विद दिस। ठीक है, इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी लर्न इन 1 or 2 days एंड आज भी हम ट्राई करेंगे कि सारे टूल्स कवर हो जाए एंड लेयरिंग का कंसेप्ट पूरा हो जाए। तो एंड अदर देन दैट ये भी पूरा हो जाए। सो टुडेज वीडियो वुड बी क्वाइट लॉन्ग एंड आई वुड रेकमेंड कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करते जाओ। जस्ट ट्राई कि आप जिस जो भी आपने कैनवा पे बनाया, जस्ट ट्राई कि वो मैं फोटोशॉप पे ही बनाऊं। ठीक है, and in the meantime, the moment you will start watching these videos which are there, which are over here of GFX Mentor, I mean that would be more than enough for you. ठीक है, so I'll just pause it and upload. Yeah, so अभी तक क्यों मैं just even try कि एक बार इसको 1.5x पे वीडियो चला लो, because things थोड़ी सी काफ़ी स्लो चलती है। ठीक है, मतलब फोटोशॉप टेक्स टाइम एंड प्रिसीजन, सो ट्राई कि आप 1.5x पे चला रहे हो। ठीक है, एंड व्हाट आई विल बी टेलिंग यू अब फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इस वीडियो में ट्राई कि मैं काफ़ी ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ, सो आई विल बी स्प्लिटिंग दिस इनटू पार्ट्स बिकॉज पीपल हैव मेड वीडियोस फॉर 30 मिनट्स ऑन टू ईच टूल। ठीक है, मैं बस एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा कि व्हाट ऑल इज देयर। ठीक है, हम पहले मूव टूल का, दिस वन इज द मूव टूल, इट मूव्स अ सिलेक्शन और अ लेयर। ठीक है, मैं इसको जो है मूव कर सकता हूँ एज पर माई डिस्क्रिप्शन एंड अगर सपोजिटली मेरे को ये बैकग्राउंड चाहिए, सॉरी, अगर मुझे ये चाहिए एंड मैं इसमें अगर ऐड कर दूँ, ठीक है, एंड इफ आई से कि मेरे को इसको ही मूव करना है, आई वांट टू प्लेस इट ओवर हियर, आई वांट टू प्लेस इट ओवर हियर, आई वांट टू प्लेस इट ओवर हियर, तो आई कैन डू दैट फॉर फ्रॉम दिस पर्पस। एंड अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आर्टबोर्ड टूल आ जाता है, तो अभी आर्टबोर्ड सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट स्टिल आई विल टेल यू व्हाट एन आर्टबोर्ड इज। ठीक है, आर्टबोर्ड क्या करता है आपका, मतलब एक ही, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, आर्टबोर्ड क्या करता है, इट विल मेक अ न्यू काइंड ऑफ अ थिंग, पूरा ही एक नया कैनवस बना देता है। सो दिस वन इज आर्टबोर्ड 1, दिस वन इज आर्टबोर्ड 2। सो मैं साइड बाय साइड ही काम कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ कलर्स चाहिए विच आई वांट टू यूज, ठीक है, एंड जस्ट अ सेकेंड, आई हैव सिलेक्टेड आर्टबोर्ड 1, I'll just select the layer in this। ठीक है, सो आर्टबोर्ड में हम एक लेयर बना देंगे पहले तो।
ठीक है, आई प्लेस्ड माई कलर्स इन दिस। ठीक है, मैंने मूव करा अपनी सिलेक्शन को ही। ठीक है, सो मैं अपनी सिलेक्शन को भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई मे टेक अ पैलेट फॉर माई सेल्फ। ठीक है, मैं चाहूँ तो अपने लिए पैलेट बना सकता हूँ दैट आई वांट टू वर्क यूजिंग दीज टू कलर्स। एंड साइड बाय साइड मुझे अगर काम करना है तो मैं छोटा सा कार्डबोर्ड बना सकता हूँ। ठीक है, आई गेस आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ बैटरी, आई जस्ट पॉज इट ओवर हियर। Alright, so welcome back. So I was mentioning about using color palettes in this. मैं चाहूँ तो अपने लिए कलर पैलेट्स यूज कर सकता हूँ दैट आई वांट टू वर्क विद दीज कलर्स ओवर हियर, आई हैव दिस थिंग इन माइंड, आई एम डिजाइनिंग अ लोगो फॉर इंस्टेंस। तो पहले ड्राफ्ट किया, फिर मैंने थोड़े कलर्स लगा दिए साइड में दैट आई वांट टू वर्क इन दिस। ठीक है, तो आर्टबोर्ड टूल इसमें काम आता है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे पूरा का पूरा ही आर्टबोर्ड बड़ा बड़ा बिल्कुल चाहिए। ठीक है, मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। एंड आई गेस थोड़ा सा एरर आ गया। आई जस्ट डिलीट दिस आर्टबोर्ड। ठीक है, जस्ट सेकेंड, आई गेस वो पूरा ही उसको कवर कर लेता है साइज को। सो व्हाट आई जस्ट डू, आई टेक इट ओवर हियर, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। सो आई हैव दिस वन। ठीक है, अब जैसे मेरे को बेसिक सा आर्टबोर्ड चाहिए, मुझे ऊपर कलर्स चाहिए इसके लिए, तो मैं एक आर्टबोर्ड डाल सकता हूँ उसके ऊपर ही। एंड इफ आई वांट कि मैं इसको कहीं भी मूव कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड, आई यूज द आउटपुट टूल, यहाँ पे क्लिक करके आई ड्रैग इट एनीवेयर आई वांट। ठीक है, एंड मैं अकॉर्डिंगली अपना कलर पैलेट यहाँ पे सेट करके I can use it as per my discretion, because eyedropper tool can work anywhere. It even takes this color, it even takes this color, this color, this color. So I can use artboard I mean the eyedropper tool as per my discretion. So artboard tool इसमें use आता है। You won't be needing this as such, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी मैं भी खुद भी honestly इतना use नहीं करता artboard tool। ठीक है, so you must have understood about the move tool, what is it is all about। ठीक है, तो इसको भी हाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूंगा कि वाटर इज देयर इन द लेयर्स पैनल। ठीक है, बट फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द टूल्स दैट आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द सिलेक्शन टूल। ठीक है, सो इस पे काफी ज्यादा ऑप्शंस आते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल इज देयर, एलिप्टिकल इज देयर, सिंगल रो मार्की टूल इज देयर, कॉलम इज देयर। सो यू मे यूज इट एज पर योर नीड। ठीक है, अगर मुझे रेक्टेंगल चाहिए, मुझे सपोजिटली ये चीज चाहिए, मुझे ये कवर करना है, तो मैं अगर मेरे को आई नीड copy this, so I'll just write control C and then control V। ठीक है, so if I just move this one इसी पे, as you can see पूरी एक लेयर की कॉपी बन गई। ठीक है, so as you can see कि पूरा का पूरा कॉपी हो गया, but now the thing comes कि इसका बैकग्राउंड कैसे हटाऊं। so that will be considered covered in magic eraser tool, वो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, इलेप्टिकल टूल में भी यही सब आता है। ठीक है, मेरे को सर्कुलर सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, एंड सिंगल रो में भी यही आता है। जस्ट अ सेकेंड, सिंगल टूल मतलब मैंने आज तक इतना यूज नहीं किया है वैसे तो ऑनेस्टली, बट आई डोंट थिंक इसका कोई इतना यूज होता है। ठीक है, तो कॉलम में भी ऐसे ही चलता होगा कि अगर मुझे ये चीज कुछ सेलेक्ट करनी हो, आई डोंट नो। हाँ, ठीक है, सो ऐसे लिया एंड ड्रैग करके, सो कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल एंड शिफ्ट टुगेदर। ठीक है, सो यू मे चूज योर रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस एज वेल, but I honestly choose this one. This one is great for choosing। ठीक है, नाउ कम्स की इसको अगर मैं सिलेक्शन कर ली, ठीक है, मैं मूव टूल से इसको मूव कर सकता हूँ एज पर माई डिस्क्रिप्शन, या इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बट इफ आई वांट कि मेरे को इसके साथ थोड़े चेंजेस करने हैं, ठीक है, व्हाट आई जस्ट डू, आई क्लिक ऑन राइट क्लिक, you may see a variety of options are there, there is select inverse, there is feather, there is save selection, there is mark work path, new layer is there, you may convert this into a new layer, you can transform this अगर साइज बढ़ाना होता है या फिर साइज कम होता है। ठीक है, आई जस्ट डू इनटू फ्री ट्रांसफॉर्म, मैं इसको पूरा साइज ही चेंज कर सकता हूँ। आई जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर फर्स्ट। ठीक है, मैंने गया, मैं इस पर फ्री ट्रांसफॉर्म कर दिया।
ठीक है, मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। आई कैन एडजस्ट इट एज पर माई डिस्क्रिप्शन। मुझे फेस बड़ा करना है, छोटा करना है, although it is looking kind of creepy, but okay. But you may do anything that you want in this. Okay. You may watch it in parts as well because थोड़ा सा ये लॉन्ग चलता है एंड मैं ट्राई करूंगा कि सारा कवर हो जाए। यू मे वॉच इट एज पर योर डिस्क्रिप्शन। जब पहले एक एक टूल को समझना है, एक एक टूल को प्रैक्टिस करना है एंड देन कंटिन्यू द वीडियो। ठीक है, अभी ये गलत टूल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सो इट इज समथिंग विच कैन बी डन। तो आई हैव कवर्ड द मूव टूल एंड द सिलेक्शन टूल, सॉरी रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन टूल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कम्स द लासो टूल। तो लासो टूल एक्चुअली होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ अ टूल दैट इज यूज फॉर सिलेक्शन। ठीक है, अगर जैसे मुझे ये सिलेक्शन करनी है तो अगर माउस के साथ काफी अच्छा अगर मेरा चल रहा है तो आई कैन जस्ट टेक दिस एंड मैं पूरा का पूरा ही इसको सिलेक्ट करके आई मे मेक अ काइंड ऑफ अ ट्रेसिंग ऑन टू दिस एंड एज यू कैन सी अगर मैं इसको वापस इनिशियल पॉइंट पे ले जाता हूँ तो वो पूरी सिलेक्शन बन गई। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव दिस वन एंड आई वांट टू, अगर मेरा काफी ज्यादा अगर मतलब जस्ट अ सेकेंड, अगर मेरा काफी ज्यादा माउस के साथ हैंड इज वर्किंग विद दैट, ठीक है, सो आई मे गो विद दिस। मैं पूरा इसको अगर ट्रेस करना चाहूँ आई कैन ट्रेस इट एज पर माई डिस्क्रिप्शन। एंड सिंस आई डिड दिस, तो मैं चाहूँ तो इसको पूरा एडिट कर सकता हूँ एंड आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट। मुझे इसे कॉपी करना हो, ठीक है, एंड आई हैव दिस कॉपी विद मी। तो जैसे यू मे मेक स्टिकर्स आउट ऑफ दिस, अगर बैकग्राउंड वाला स्टिकर्स चाहिए होते हैं तो यू मे मेक अ स्टिकर आउट ऑफ दिस। ठीक है, सो लासो टूल का यही काम होता है। बट एज यू हैव नोटिस कि मेरा भी प्रिसीजन नहीं था, मेरा भी ऊपर नीचे हो रहा था। सो बंदा कब तक इतना वो करेगा? जस्ट इफ आई जस्ट मेक अ सिंपल सिलेक्शन फ्रॉम दिस, ठीक है, ये सिलेक्शन तो हो गई बट मेरे को प्रिसीजन चाहिए, तो हाउ कैन आई डू दैट? सो उसमें अगर राइट क्लिक करेंगे तो देर इज पॉलीगन लासो टूल। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस जो होती है मुझे स्ट्रेट ही सिलेक्शन करनी है। मुझे सपोजिटली ये चाहिए, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मुझे ये सिलेक्शन चाहिए बट मुझे इसको एज इन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है इसका सिलेक्शन। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि मैंने कितने सारे स्टेप्स करे। मैंने इसको पूरा ट्रांसफॉर्म किया, फिर मैंने शिफ्ट दबाया, फिर मैंने इसको ओपन किया एंड काफी ज्यादा हैसल हो जाती है। ठीक है, तो पॉलीगन लासो टूल कम्स इन द पिक्चर आफ्टर दिस। यू मे जस्ट टेक स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, मेरे को अगर बहुत प्रिसीजन चाहिए, मेरे को स्ट्रेट स्ट्रेट ही सिलेक्शन करनी है एंड इट completes my selection without taking any kind of, मतलब पूरा राइट क्लिक करके। एंड आई हैव अ वैरायटी ऑप्शंस दैट आई नीड इन दिस। मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, इफ आई वांट मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, मतलब स्केल्स भी, मतलब काफी सारे ऑप्शंस आर देयर। ठीक है, यू मे टेक रोटेट इन दिस, रोटेट कर सकते हो आप अपनी सिलेक्शन को। यू मे टेक स्क्यू इन दिस। ठीक है, एक सेकेंड, आई जस्ट शो यू। हाँ, सो एज यू कैन सी कि मैं इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ इफ आई वांट टू काइंड ऑफ गिव अ 3D इफेक्ट टू दिस। ठीक है, अदर देन दैट आई विल शो यू, जस्ट अ सेकेंड। ट्रांसफॉर्मेशन सिलेक्शन के डिस्टॉर्ट कर सकते हो आप इस चीज को, अपनी सिलेक्शन को डिस्टॉर्ट करा है, आई गेस। जस्ट अ सेकेंड, आई विल really transform this first. Just a second, I have the distort option in this. Just a minute, मतलब जस्ट ट्राई करना कि फ्री ट्रांसफॉर्म पहले ज्यादा क्लिक हुआ वो। ठीक है, नाउ आई कैन डिस्टॉर्ट दिस एज यू कैन सी कि मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस एज वेल। एंड इफ आई वांट अ पर्सपेक्टिव ऑन टू दिस, मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू पुल अ रैप ऑन टू दिस, मतलब मेरे को अगर अपने हिसाब से इसको मोल्ड करना हो चीज़ों को, काइंड ऑफ एक इफेक्ट देना हो, तो यू मे डू दिस विद दिस टूल एज वेल एंड वो बिल्कुल ऐसा ही बना रह जाएगा। ठीक है, सिंस वी हैव डन अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, नाउ लेट्स नॉट get into this and layer via copy and layer via cut का you must be knowing an option। न्यू लेयर से यही होगा कि नई लेयर बन जाएगी। तो लेयरिंग का कंसेप्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग फर्दर मोर व्हेन वी विल बी कवरिंग दिस पार्ट। ठीक है, आई होप द पॉलीगन लासो टूल का यू मस्ट बी क्लियर अबाउट।
ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स मैग्नेटिक लासो टूल। तो क्या होता है, जैसे होता तो ये लासो टूल की तरह ही है, बट देर इज अ मैग्नेट इन दिस। तो वो क्या करता है, कलर्स को आइडेंटिफाई करता है एंड आइडेंटिफाइज द ऑब्जेक्ट एज सच। तो वो पूरा एक ऑब्जेक्ट को ही कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है। सो व्हाट आई विल जस्ट डू इफ आई वांट दिस सिलेक्शन टू बी देयर। ठीक है, मैं इधर जाऊंगा, मैं जस्ट माउस को जैसे उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, मतलब आगे पीछे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मतलब उसी डायरेक्शन में बस थोड़ा थोड़ा प्रिसीजन के साथ आई एम ट्राइंग कि मैं उसको लेकर जाता जाऊं। दिस माइट टेक सम टाइम, बट द फाइनल आउटपुट इज एक्चुअली रियली ग्रेट। जस्ट अ सेकेंड। तो ये थोड़ा थोड़ा ना इसमें ये ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, so no problem in that. I'll just select this again. सो एज यू कैन सी मैं जस्ट माउस को उसके ऊपर बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, एंड अगर मैं अंदर लेकर जा रहा हूँ तो उस हिसाब से अपने आप करता जाएगा एंड पीछे करता जाऊंगा। एंड यू कैन सी इसमें ये जो डॉट्स बन गई है, अगर ये एक बार बन जाती है तो वो सिलेक्ट हो जाती है। सो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। ठीक है। सो जस्ट ट्राई कि आप क्लिक करते जा रहे हो जहां जहां पे आपकी फाइनल सिलेक्शंस होती है ऑन द कॉर्नर्स। एंड इफ यू प्रेस कंट्रोल एंड प्लस, आई मीन, सो यू मे जस्ट नोटिस कि मैं प्रिसीजन के साथ इसको कर सकता हूँ। अभी I've done this just like that only. ठीक है, just a second. सॉरी। एंड पूरा अगर मैं इसको लेकर जाऊँ, I've done this quickly। ठीक है, तो मतलब काफी हद तक काफी अच्छा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, एंड मैंने अभी शॉर्टकट की यूज की है, कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, इट इज फॉर कॉपिंग, बट यू मे राइट ऑन टू दिस, यू मे जस्ट राइट क्लिक एंड मेक लेयर बाय कॉपी। ठीक है, मतलब जो शॉर्टकट्स होते हैं वो नेट पे मिल जाएंगे। ठीक है। सो एज यू कैन सी काफी हद तक काफी अच्छी सिलेक्शन हुई है। एंड थोड़ा सा ये मतलब ये चीज आ गई है तो दैट इज अननेसेसरी, तो हम इसको हटा भी सकते हैं फ्रॉम यूजिंग द मैग्नेटिक लासो टूल ओनली। तो ये थोड़ा क्लिक करोगे एंड पूरा का पूरा इट विल जस्ट रिमूव विद प्रिसिजन। सो आई गेस वी आर डन विद मैग्नेटिक लासो टूल। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे बी सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड मुझे इसमें ग्रेडियंट लगाना हो, ठीक है, आई सिलेक्ट वन रैंडम ग्रेडियंट कलर इन दिस। ठीक है, सो एज यू कैन सी कि मेरे पास इस पे कलर आ गया। थोड़ा सा वो अजीब सा हो गया, बट ठीक है, इट हैज बीन डन क्विकली, विद टाइम आ जाता है। I hope you must be clear with the magnetic lasso tool. I guess the video has gone quite long. ठीक है, so I'll try कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, एंड इस वीडियो में will be just be covering about this only. ठीक है, so as of now you may just try out the selections part. ठीक है, थोड़ा सा अभी just मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि एक बार हम सिलेक्शन टूल्स को कंप्लीट कर ले, क्रॉप तक हम कर लेते हैं, and after that we'll be continuing more further more tools. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स दिस इज अ क्रॉप टूल। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कम्स क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, सो क्या होता है, क्विक सिलेक्शन टूल होता है काफी बेनिफिशियल होता है। यू आर नॉट इवन सपोज टू जस्ट ट्रेस इट आउट। मैं जस्ट एक क्लिक करूंगा एंड वो सिलेक्ट कर लेगा एक एक करके। तो एज यू हैव सीन की मैंने जस्ट एक कॉर्नर पॉइंट्स पे क्लिक करना शुरू किया एंड वो अपने आप सेलेक्ट करता जा रहा है चीजों को। आई एम जस्ट नॉट पुटिंग इनटू एनी एफर्ट इनटू दिस, एंड वो जस्ट क्लिक्स पे अपने आप ही चीजों को सिलेक्ट करते जा रहा है। एंड आई विल जस्ट सी कि वो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाए। आई होप दिस हैज बीन सिलेक्टेड विद प्रिसीजन। यहाँ पे थोड़ी सी बुक रह गई। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे को ये वाली सिलेक्शन नहीं चाहिए थी, तो मैं गो टू माइनस एंड इसको फिर पूरा हटा दो, एंड मेरे को जैसे ये नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। सो एज यू कैन सी वो पूरा अच्छे से सिलेक्ट कर दिया एंड इन सेकेंड्स आई मेड अ सिलेक्शन। ठीक है, सो एज यू कैन सी काफी अच्छा हद तक काफी अच्छी सिलेक्शन हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा इज देयर, तो मैं उसको इरेज कर दूंगा मैजिक इरेजर टूल से। तो मैजिक इरेजर टूल वोंट बी अवेलेबल इन फोटो, यू मे यूज trace.com. Yes, it was sticker mule slash trace, so you may use that for the same. So you have noticed कि same precision के साथ quick selection tool has done a fabulous job for me. Okay, so now what is there in this that I hope you must be clear। अगर मुझे इसको थोड़ा सा select करना है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे select करता जाऊंगा।
ठीक है, वो पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेगा। एंड इफ आई वांट कि मेरे को बैकग्राउंड के अलावा ये चाहिए, सो देयर इज एन ऑप्शन। ठीक है, मैं करता हूँ। सो वी हैव सिलेक्टेड दिस। ठीक है, अब मैं अगर इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ तो इसके अलावा सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे कंट्रोल एक्स दबाता हूँ तो मैं डायरेक्टली इसी लेयर पे आ गया विदाउट कॉपिंग दिस। एंड यू हैव सीन कि काफी ज्यादा सही टूल है ये। ठीक है, आफ्टर दैट कम्स द मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल इज लाइक अ सेवियर फॉर यू। ठीक है, ये मतलब ऑटोमेटिकली इफ आई जस्ट क्लिक ऑन टू दिस वो पूरा बी सिलेक्ट कर लेगा। इफ आई क्लिक ऑन टू दिस उसने ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता है सिलेक्ट करना, बट इट इज नॉट एज प्रिसाइज एज अ मैग्नेटिक लासो टूल और अ क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, जैसे अगर मुझे सिर्फ यही चाहिए मुझे सिलेक्ट करना तो यू में यूज दिस, आई वांट दिस वन टू बी सिलेक्टेड। तो मैजिक वॉन्ड क्या करते हैं, जैसे पिक्सल्स पे वर्क करता है तो ये सिमिलर काइंड ऑफ पिक्सल्स को उठा लेता है। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन टू दिस तो वो उससे पूरा का पूरा ही वो चीज ले ली। ठीक है, एंड अगर मैं जैसे थोड़ा थोड़ा अगर मेरे को ये ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, वो पूरा एक कलर उसने सेट सिलेक्ट करा। ठीक है, इट वोंट बी सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर सिलेक्शन एज सच। ठीक है, so as you can see irregular सी selections आ रही है, this one is quite irregular and so you may not be using quick selection tool in substitute of magic wand tool. Both of them have their equal importance as such. And next comes the crop tool. So crop tool is nothing, just you must be knowing about cropping. अगर मेरे को ये चीज नहीं चाहिए या मुझे थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना है एंड आई वांट दिस वन, तो जस्ट मैं एंटर दबाऊंगा एंड क्रॉप हो जाएगा वो। Okay, so what I was just want कि आप एक बार इसको practice करो and I hope this video was great for you. We have covered till crop tool, so you may adjust it as per your requirements. ठीक है, so just a second. So I guess we'll just try to do the frame tool as well. ठीक है, frame tool का इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, वो बस इसको एक पर्टिकुलर फ्रेम दे देता है कि मेरे को इसी फ्रेम पे काम करना है, वांट टू वर्क ऑन टू दिस थिंग, वो फ्रेम बना देता है उसका। ठीक है, इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, वो एक फ्रेम टूल हो जाता है। फ्रेम टूल मैं इतना यूज नहीं करता। ठीक है, सो ऑनेस्टली इसका कोई इतना मेरे को लगता नहीं यूज। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वाज काइंड ऑफ इंसाइटफुल फॉर यू। ठीक है, मैं एक बार फ्रेम डिलीट कर लूँ। So we'll meet in the next video and we'll be covering from eyedropper tool. ठीक है, so I hope this video was insightful for you and it was quite interesting to know about Photoshop. So I'm just covering a basic overview and side by side जो भी हमें ग्राफिक्स बनाने होंगे I'll be making sure कि वो कैनवा पे ही बने। ऐसा ना हो कि फोटोशॉप पे बना रहे तो वो मुश्किल सा लगे। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द बेसिक टूल्स फर्स्ट। एक बार टूल्स पे थोड़ी सी मास्टरी आ जाती है, आफ्टर दैट एंड डिजाइनर्स जो सेंस जो डेवलप हो रही है इट इज डेवलपिंग ऑन टू कैनवा। सो वंस यू आर वेल वर्स्ड विद बोथ द थिंग्स तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके विल बी मेकिंग some things on Photoshop, some things on Canva as such. So thanks for watching the video and we will be meeting in the next video. I guess I'll be making a third part for this or we shall be closing it over here only. So I'll be just be asking you to just make a quick selection for an object. I'll be giving you uh, this picture only, so you may practice onto this and we shall meet in the next video or I guess we'll be meeting tomorrow. Okay, so thank you for watching the video. I hope it was great for you and we'll meet in the next video.